average. Okay. So Medhali, let me ask you something. Okay, are you familiar with maths, Medhali? Okay, like you like maths or whether you haven't been in touch with maths. Okay, may I know some? Okay, may I know your view regarding maths? Like, are you afraid of maths or you like maths? Medhali, this is my question to you. शीतल, आपने मैथ्स की प्रैक्टिस की? शीतल, राहुल मैथ्स की प्रैक्टिस करते हैं साथ? Okay, Ayushi, are you practicing? Kavita, Kiran, Bharat, Ashwin, Sneha, Mangesh, Joseph. Okay, you're afraid of maths. Oh, okay, okay. मतलब आपको मैथ्स बहुत ज्यादा पसंद नहीं है मेरी. This is what I take it. Okay. Akshay, do you practice maths? Neha, what about you? Mangesh, Trupti, Ayushi, शीतल, आप प्रैक्टिस किए मैथ्स? शीतल, आपने प्रैक्टिस किए मैथ्स? चलो, अगर आप बोल रहे हो तो मैं ऐसे कंसिडर कर लेता हूँ. आप बोल ही रहे हो तो मैं वैसे कंसिडर कर लेता हूँ. ओके. तो आज का हमारा टॉपिक है एवरेज. ओके, आज का हमारा टॉपिक एवरेज है. वैसे कुछ बहुत ओके, एवरेज जो हम लोग ने बचपन में पढ़ा है वैसे ही कुछ है आज का टॉपिक, बट उतना भी ओके एज वी आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम वो उतना भी सिंपल नहीं है. ओके, टू बी ऑनेस्ट, उसके कंसेप्ट काफी सिंपल है लेकिन कंसेप्ट कहाँ पर लगाने हैं. ओके, वेयर टू यूज which concept to use where. Okay, so that is the main thing. Okay, that is the catch of any competitive exam. तो पहले एवरेज को बेसिक मान, एवरेज को बेसिक से पढ़ेंगे. ओके, उसके बारे में जो भी रहेगा मैं आपको बताते जाऊंगा. ओके, एंड देन वी विल कम टू नो, एंड देन यू विल कम टू नो कि मैथ्स कितना अच्छा है. ओके, एंड ऑल्सो ओके एवरेज के कंसेप्ट क्लियर हो जाए. नाउ, व्हाई इज एवरेज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ डिस्कशन? ओके, द रीजन इज एवरेज स्टूडेंट्स ना याद रखना, एवरेज जो है वो आपको डीआई में भी काम में आता है. जैसे मैंने बोला दैट परसेंटेज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक व्हिच विल help you in data interpretation. Ratio and proportion is again an important topic which helps you in data interpretation. Along with those two topics, okay, average is another topic which helps you to have speedy calculations. Okay, when you attempt a paper, okay, for DI, basically DI, bank ka DI. Okay, so let us start with today's session. Okay, once again, good evening, everyone. Okay, we are starting with today's wonderful session. Okay, and the name of the topic is average. So let's start. Okay, I hope you have a pen and paper with you to get to write things down, to write things. Okay. Okay. So students, what is average? First things first, what is average? Average होता क्या है? The average is nothing but sum of all quantities. Average is sum of all quantities divided by number of quantities. Okay, so take this down. Average is nothing but sort of sum of all quantities divided by number of quantities. Good evening, Sridhar. Okay, so say for example, I write some random numbers 7, 10, okay, 14, 18. Okay, and if I ask you कि students इसका average क्या होगा? If I ask you कि students इसका average क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे? सर हम लोग इसको पहले ऐड करेंगे 7 plus 10 plus 14 plus 18. Okay. Average क्या बोलते हैं? Sum of all quantities. Sum means addition divided by number of quantities. अब total quantities कितने? 1, 2, 3 and 4. चार quantities है, उसको 4 से divide करेंगे. And what if we add 17, 14, 31, 49, 49 by 4? Okay, for 12.25. तो इसका एवरेज कितना आता है स्टूडेंट्स? 12.25. तो एवरेज मतलब क्या? एवरेज इज नथिंग बट सम ऑफ ऑल क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? किसी को इसमें कुछ डाउट है? मेधावी, डू यू हैव एनी डाउट?
Okay, is this clear to each and every one of you? Okay, chalo. Okay, students, so we are moving ahead. Where is it? Where is it? Yes. So students, okay, say for example, if I talk about consecutive numbers, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. अगर आप मुझे बोलोगे कि सर कि फाइंड द एवरेज ऑफ दीज नंबर्स, ओके, तो मैं इसको ऐड करते नहीं जाऊंगा, ओके, आई विल नॉट ऐड इट, ओके, मैं सीधा बोलूंगा ये जो नंबर है ना बीच वाला, ये इसका एवरेज होगा। इसके राइट हैंड साइड में भी 3 नंबर है, इसके लेफ्ट हैंड साइड में भी 3 नंबर है, ओके, और हर एक का डिफरेंस कांस्टेंट है, मतलब डिफरेंस 1 और 2 में 1 है, इन दोनों के बीच में 1 का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में 1 का डिफरेंस है, अगेन अ डिफरेंस ऑफ 1, अगेन अ डिफरेंस ऑफ 1, अगेन अ डिफरेंस ऑफ, तो जब भी डिफरेंस कांस्टेंट होगा, ओके, और नंबर ऑफ इंटीजर्स मतलब डिजिट्स मतलब 7 होंगे, 7 मतलब ऑड नंबर होंगे, तो एवरेज हमेशा उसकी सेंटर वैल्यू होगी, एवरेज हमेशा उसकी सेंटर वैल्यू होगी। Okay, we will take 2 and 3 more examples. 2 examples और लेके आप concept clear हो जाएंगे. So if I talk about 9, okay. अगर मैं 9, 10, 11, 12, 13 की बात करूँ, and if I ask you to find students, मुझे इसका एवरेज बताओ, तो उसका एवरेज क्या होने वाला है? इसके एवरेज में सीधा सीधा बोलूंगा इसका सेंटर नंबर है, ओके, 5 नंबर है तो उसका एवरेज कौन सा होगा? थर्ड नंबर। क्यों मैंने वापस से ऐसे बोला? क्योंकि देखो डिफरेंस सेम है, 9 और 10 के बीच में 1 का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस। यहाँ तक बात सबको क्लियर है? वेरी गुड शीतल, यहाँ तक बात सबको क्लियर है? किसी को यहाँ तक डाउट है? मेधाली, डू यू हैव एनी डाउट्स? अक्षय, आयुषी, okay, now if I say to find the average of these numbers, 11, 14, 17, 20, 23, 27, 30, मुझे इसका एवरेज बताना जरा, इनका एवरेज क्या है? फटाफट आपके कमेंट मेरे सामने ही है। वेरी गुड मेधारी, वेरी गुड अक्षय, वेरी गुड मनाली, वेरी गुड आयुषी, वेरी गुड शीतल, व्हाट अबाउट अदर्स? प्रफुल्ल, सरासरी का है, एवरेज का है? वेरी गुड तृप्ति, वेरी गुड निखिल, वेरी गुड कविता, वेरी गुड कौशिक, वेरी गुड स्नेहा, वेरी गुड भारत, ओके, प्रफुल्ल, प्रफुल्ल, किरण, वेरी गुड, ओके, डेफिनेटली बीच का नंबर होगा ना, डायरेक्टली बीच का नंबर क्यों बोल रहा हूँ मैं? सेंटर नंबर, बिकॉज डिफरेंस कांस्टेंट है, 3 का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ 3, अगेन डिफरेंस ऑफ 3, अगेन डिफरेंस ऑफ 3, अगेन डिफरेंस, तो जब कांस्टेंट डिफरेंस के हिसाब से होगा, ओके, देन ओके सीधा बोल सकते कि भाई सेंटर नंबर उसका एवरेज है। नाउ लेट अस गो टू अ न्यू कांसेप्ट, ओके, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ओके, लेट अस मूव अहेड, ओके, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर आप लिख रहे हैं तो लिख ले लो, जस्ट टेल मी वंस यू आर डन, तो मैं आगे बढ़ पाऊँ, ओके, इफ यू आर डन विद द राइटिंग पार्ट लेट मी। बुलावे तुझे यारे आज मेरी गली। चलो, ओके, सो कॉन्सिक्वेंस लेट्स डू इट। चलो, तो स्टूडेंट्स अभी मुझे एक बात बताओ, इफ आई आस्क यू टू फाइंड द एवरेज ऑफ दीस 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, अभी मैं आपको इसका एवरेज ढूंढने को बताऊंगा, तो इसमें कुछ सेंटर नंबर नहीं है, देयर इज नो सेंटर नंबर, ओके, तो यहाँ पे सेंटर में मैं बोलूंगा स्टूडेंट देयर आर 2 नंबर, दिस 3 एंड दिस 2,
तो एवरेज क्या होने वाला है इन दोनों के बीच में, तो मैं सीधा बोलूंगा 3.5 एवरेज। ओके, एवरेज क्या होने वाला है इन दोनों के बीच का नंबर। ओके, मतलब 3 + 4 डिवाइडेड बाय 2 करूंगा, तो एवरेज क्या होगा 3.5। क्योंकि यहाँ पर नंबर अभी इवन है, यहाँ पर सब कौन से नंबर्स थे, ओके नंबर इवन है, मतलब ये 6 वाला इवन नहीं बता रहा हूँ मैं। ओके, ये जो नंबर्स है, ओके ये 6 है। ओके, तो कोई बीच का नंबर तो आगा नहीं। 5 नंबर्स के बीच में 3 आता था, 7 नंबर्स के बीच में 4 आता था। ओके, बट इन दिस केस ओके आई डोंट हैव अ सेंटर नंबर। सो दो बीच के जो नंबर्स होंगे, द टू नंबर्स विच आर देयर एट द सेंटर, ओके हम उन दोनों का एवरेज निकालते हैं। 3 और 4 के बीच में नंबर कौन से 3.5। ओके, if I give you another example, okay, 2, 4, 6, 8, 10, 12। अगर मैं बोलूं कि स्टूडेंट्स फाइंड द एवरेज ऑफ दिस, ओके फाइंड द एवरेज ऑफ दिस, अगेन वी डोंट हैव अ सेंटर नंबर और डिफरेंस भी कांस्टेंट होना चाहिए। डिफरेंस तो कांस्टेंट है ना, दो का डिफरेंस है अभी नीचे। ओके, डिफरेंस इज कांस्टेंट। ओके, तो एवरेज क्या होगा इसका बताना जरा। वेरी गुड मनाली, वेरी गुड। मेरा भी 10 कैसा रहेगा एवरेज, ओ इट्स 10 द एवरेज, इट विल बी 7 ना, it will be 7। okay, because these two are center numbers, these two are center numbers। और 6 और 8 के बीच में कौन सा नंबर आएगा, 7 आएगा कि नहीं। 6 और 8 के बीच में कौन सा आएगा, 7 आएगा। नहीं तो 6 + 8 डिवाइड बाय 2 करना, 6 + 8 डिवाइड बाय 2 करना, तो 14 डिवाइडेड बाय 2 सारा आ जाएगा। ओके, इन दोनों के बीच का नंबर होगा, दिस इज व्हाट आई वांट टू से, उन दोनों के बीच का नंबर होगा। ओके, इफ आई से अबाउट दिस 3, 6, 9, 12, 15, 18, टेल मी द एवरेज ऑफ दीज नंबर्स। मुझे इन नंबरों का एवरेज बताना। टेल मी द एवरेज ऑफ दीज नंबर्स। वेरी गुड कविता। ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पर सेंटर नंबर कौन से ये है 9 एंड 12। ओके, 9 एंड 12 आर द सेंटर नंबर, तो एवरेज क्या होगा इन दोनों के बीच वाला नंबर। सो 9 + 12 डिवाइडेड बाय 2, तो 9 + 12 21 होगा, 21 डिवाइडेड बाय 2 10.5 होगा। एवरेज क्या है स्टूडेंट्स 10.5। यहाँ तक सबको क्लियर है, किसी को कुछ डाउट। ओके, आई होप देयर इज नो डाउट। ओके, तो स्टूडेंट्स आपने और भी एक चीज नोटिस की होगी कि अभी इन दोनों में डिफरेंस। ओके, ये एग्जांपल में 3 और 4 के बीच में डिफरेंस कितना है, 1 का डिफरेंस है। तो एवरेज कितना है 1 डिवाइडेड बाय 2। ओके, 0.5 बढ़ गया, 3 से 0.5 बढ़ गया, या फिर 4 से 0.5 कम कर दो, आपका आंसर 3.5 आया। इवन इन दिस केस स्टूडेंट 6 और 8 के बीच में कॉमन डिफरेंस है, 6 और 8 के बीच में डिफरेंस 2 था, 2 डिवाइड बाय 2 1 होता है। तो एवरेज का आया 7, मतलब कि 6 से 8 ज्यादा या फिर 8 से 1 कम। Similarly, in this case, the difference between 9 and 12 is 3. So 3 divided by 2, 1.5। तो आपका एवरेज क्या है 9 + 1.5 करो या फिर 12 - 1.5 करो, आपका आंसर 10.5। तो बेसिकली एवरेज लिया है, मतलब एक्चुअली क्या लिया हम लोग ने डिफरेंस को डिवाइड बाय 2 किया। एवरेज लिया मतलब क्या लिया एट द एंड हम लोग ने उस जो दो नंबर में डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स, वी हैव डिवाइडेड दैट डिफरेंस बाय 2, क्योंकि नंबर्स दो। ओके, मैं थोड़ा और डेप्थ में जाके बोला हूँ, आई हैव जस्ट पुट अ लिटिल इन डेप्थ विद रिस्पेक्ट टू दिस। क्लियर है स्टूडेंट्स, जो मैंने अभी नया कंसेप्ट बोला है, उन दोनों के बीच में डिफरेंस को मैंने हाफ कर दिया, क्योंकि नंबर्स दो है। 2 से ही डिवाइड क्यों किया, क्योंकि दो नंबरों के बीच में निकाल रहा हूँ ना, इसके लिए डिवाइड बाय 2। ओके ओके, नाउ स्टूडेंट्स अभी ये बेसिक कंसेप्ट तो मैंने आपको बता दिया कि हाउ इट इज एंड ऑल। अभी हम लोग एक्चुअल क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं।
Okay, and then you will come to know some new concepts. Okay, so now let's start with questions. Now we are starting with questions. Okay. Okay, सबसे इजी क्वेश्चन दे दो, पहला क्वेश्चन करो. सबसे इजी क्वेश्चन दे दो, पहला क्वेश्चन करो. ओके, आंसर है स्टूडेंट्स, एनी आंसर्स? 75. ओके, तो आंसर इज नन ऑफ दीज. ओके, क्या करना है स्टूडेंट्स इस केस में? ओके, वी जस्ट हैव टू ऐड दीज नंबर. ओके, 6 76 65 82 67 85. ओके, इनको ऐड करो. अब नंबर्स बार-बार मुझे कुछ लिखना पड़ेगा. लेट जस्ट नंबर 76 85 82 67 85 76 65. यार ये याद नहीं रहता नंबर, आगे पीछे करना होगा. 82 67 85. ओके, इनको मैं अभी ऐड कर रहा हूँ, इनको ऐड कर रहा हूँ. ओके, 6 by 11 13 20 25 5 2 carry forward 10 16 24 30 37 375 divided by 5. Okay, 5 7 to 35 2 carry forward 5 5 is 25. Average is 75. किसी को कुछ डाउट्स? ओके, 375 को एवरेज पूछा है और 375 तो टोटल हो गया. 375 तो एडिशन हो गया. वी आर आस्क्ड टू फाइंड द एवरेज. तो 375 डिवाइडेड बाय 5. 5 से क्यों डिवाइड किया? क्योंकि क्वांटिटीज कितने स्टूडेंट्स? 5 है. ओके, तो 75 हमारे ऑप्शन में नहीं है, तो इसका आंसर नन ऑफ दीज. ओके, इज दिस अंडरस्टूड टू एवरीवन? अक्षय, मेधाली, आयुषी, मनाली, कौशिक, तृप्ति, गौरव, किरण, अक्षय. ओके, चलो क्लियर है ना सबको? गुड. चलो, एग्जाम्पल नंबर 3 देखना. एग्जाम्पल नंबर 3 और 3 मत देखना, 5 करना. 5 डोंट डू, वी आर डूइंग 5. ओके, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3. ओके, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट्स? द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3. दिस क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3 क्या होगा स्टूडेंट्स? एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3. तो 3 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स कौन से? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15. ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, व्हेरी गुड. तृप्ती, आय गेस तुलाच दिसत नाहीये, बाकी सर्वांना स्क्रीन दिसते. ओके, एकदा रिफ्रेश करून बघ. ओके, तो स्टूडेंट्स डिफरेंस इज कॉमन ना, 3 3 का डिफरेंस है. ऑड नंबर से, ऑड नंबर मतलब क्या? 1 2 3 4 5 नंबर से. ओके, तो उसका एवरेज क्या होगा? ये बीच वाला नंबर होगा कि नहीं? सेंटर वाला नंबर. क्लियर है सबको? तो एवरेज क्या होने वाला है? मेधावी, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड. ओके, चलो सबको आंसर है. एवरेज क्या है उसका? 9. वेरी गुड. ओके,
मंगेश वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। Okay, अभी example number 7 का है। We are doing example number 7. Here it says a student was asked to find. Okay, a student was asked to find the arithmetic mean. अभी arithmetic mean मतलब भी average होता है। जो arithmetic mean है ना, okay, even this is known as average. Arithmetic mean मतलब भी average. Okay, of the numbers 3, 11, 12, 9, 15, 13, 8, 19, 17, 21, 14 and x. Okay, इतने सारे numbers आए guess 4, 6, 12 numbers है. Okay, he found the mean. अभी ये mean मतलब भी average है. Arithmetic mean या फिर mean is nothing but average. Okay, what should be the number in place of x? Okay, अभी कैसे find out करेंगे कि x क्या है? Can anyone tell me the answer for this? Okay, x को कैसे ढूंढेंगे? Okay, x को कैसे ढूंढेंगे? Any idea how to find x? Manali is saying option number 3. Okay, Manali. Okay. No. अच्छा, number is 3. Okay. So basically students अभी average इन सब numbers का 12 है. Okay. तो पहले तो नंबर को ऐड करते हैं. Okay, ऐड क्यों करेंगे? Because okay, ऐड क्यों करेंगे? क्योंकि भाई एवरेज क्या होता है? सम ऑफ ऑल क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज. ओके, तो सम ऑफ ऑल क्वांटिटीज मतलब क्या? सबको ऐड करेंगे भाई. तो 3. अभी ये सबको, ये नंबर में पीछे वापस से लिख नहीं पाऊंगा, तो आई एम एडिंग दिस हियर. ये सबको मैं अभी ऐड कर रहा हूँ. ओके, 3, 11, 14, 21, 30, 45, 58, 60, 66, okay, 85, 102, 132, 102, 123, sorry, 102, 123, okay, 137 and 137 plus x. Okay, आंसर आई गेस 7 है. ओके, तो इनका एडिशन क्या हो रहा है? 137 प्लस x इज इक्वल टू क्या? तो इनका एवरेज कितना मिला है? 12. ओके, डिवाइडेड बाय नीचे 12. ओके, इनका एवरेज क्या मिला है? 12. बिकॉज एवरेज क्या होता है? एवरेज इज नथिंग बट सम ऑफ ऑल क्वांटिटीज. सम डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटीज. टोटल क्वांटिटीज. तो सम मतलब क्या? एडिशन तो किया है 137 प्लस x. नंबर ऑफ क्वांटिटीज कितने? 12. 12 मतलब कौन से? ये 3, 11, 7, 9, 15, 13, 8, 19, 17, 21, 14 x. इन सबको पकड़ के नंबर ऑफ क्वांटिटीज कितने? 12. और उनका एवरेज भी कितना है? 12. तो ये जब 12 यहाँ पर जाएगा तो 12 इंटू 12 144 मल्टीप्लाई होगा. ओके, तो 137 प्लस x इज इक्वल टू, ये 12 इंटू 12 हो जाएगा 144. तो x को कैसे ढूंढेंगे? x इज नथिंग बट 144. ये 137 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा. तो 144 माइनस 137 इज नथिंग बट 7. Okay, and the answer is 7. Is this clear? अक्षय, मेधाली, आयुषी, कविता, ओके. तौसीफ क्लियर है आपको? सी, हम लोग ने सीधा क्या किया है? इन सब नंबर्स को ऐड किया है. 3, 11, 7, फिर वो सब नंबर्स को ऐड, तो ऐड करके वो 137 प्लस x हुआ. ओके, तो एवरेज का फॉर्मूला क्या बोलता है? एवरेज इज नथिंग बट सम ऑफ क्वांटिटीज. मतलब ऐड किया तो एडिशन क्या है? 137 प्लस x.
टोटल क्वांटिटीज कितने 12 है, नंबर्स कितने हैं, नंबर्स 12 है, 11 नंबर्स और x है, तो टोटल क्वांटिटीज तो 12 हो जाएंगी, 11 नंबर्स और x है तो टोटल क्वांटिटीज 12 हो जाएंगी। ओके, सो 137 प्लस x डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू एवरेज कितना है, तो 7, सॉरी 12, एवरेज हमको दिया ना, एवरेज कितना है 12 है, तो इसके लिए मैंने इज इक्वल टू 12 किया, तो 12 into 12 यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ 144। ओके, सो 137 प्लस x इज इक्वल टू 144, तो 144 में से 137 माइनस हो गया, x की वैल्यू 7 बच गई। मेधाली, डिड यू अंडरस्टैंड दिस? मेधाली, इफ यू आर देयर, शीतल आपको समझ में आया? ओके ओके ओके, अच्छा अभी भी नहीं समझे मेधाली? हाँ, एंड में कुछ नहीं किया हम लोगों ने, ये जो फॉर्मूला है ना, ये पहले याद कर लो, एवरेज सम ऑफ ऑल क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी, तो 137 प्लस x इज इक्वल टू 12 हुआ, नीचे 12 है तो यहाँ पर 12 into 12 मल्टीप्लाई होता है। ओके, तो 144 आ गया। ओके, अभी 12 into 12 144 आया, तो 137 प्लस x 144 आ जाएगा, तो ये 137 अभी राइट पे ले लूंगा तो ये माइनस हो जाएगा। ओके, तो 144 माइनस 137 हो गया 7। ओके, चलिए लेट्स मूव अहेड। नाउ लेट अस टेक सम गुड एग्जांपल। अब ये तो बच्चों वाले सवाल हुए, इसका कोई इतना ये एग्जाम में बिल्कुल नहीं पूछे जाएंगे। ओके, अभी 12th एग्जांपल देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यू शुड अंडरस्टैंड, try to understand these examples because these are the easiest examples जो हम लोग अभी कर रहे हैं ना, वो सबसे इजी एग्जांपल्स कर रहे हैं, और मैं स्लोली पढ़ाऊंगा आपको। ओके, स्लोली पढ़ाऊंगा, आप ये समझने की कोशिश करो। ओके, नाउ इट सेज 12th एग्जांपल, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स। ओके, तो नेचुरल नंबर मतलब क्या है, एक से शुरुआत होती है और इंफिनिटी तक जाती है। नेचुरल नंबर्स मतलब एक से शुरुआत होती है, इट स्टार्ट्स विद 1 एंड गोस ऑन टिल इंफिनिटी। नाउ ओके, फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स, तो पहले बातों में अभी है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस, ये करते नहीं बैठूंगा, एक फॉर्मूला 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 एन तक, ये फॉर्मूला आप लिख लो। ओके, n into n plus 1 by 2, n into n plus 1 divided by 2, this is the formula. Okay, n into n plus 1 by 2 is the formula. अभी इस केस में हम लोग को n क्या बोला है, इस केस में जो n बोला है ना वो 50 है, क्यों? क्योंकि 50 नेचुरल नंबर्स, तो एवरेज क्या होता है, सम ऑफ ऑल क्वांटिटीज। ओके, बार बार फॉर्मूला लिखूंगा नहीं, ये भी लास्ट टाइम लिख रहा हूँ, एवरेज नथिंग बट सम ऑफ ऑल क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटीज, टोटल क्यू। ओके, तो इसका सम कितना होगा स्टूडेंट, सम कितना होगा, एडिशन होगा, सम मतलब है एडिशन, 1 से लेकर 50 तक। ओके, तो फॉर्मूला क्या है, n into n plus 1, तो 50 n plus 1 हो जाएगा 51 डिवाइड बाय 2, तो 25, तो सम हो गया 25 into 51। अभी इसको मैं मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, उसको मैं वैसे ही रखूंगा, आई विल नॉट मल्टीप्लाई इट, आई विल कीप इट एज इट इज। ओके, तो सम हो गया, ये जो सम है ये कितना आया है, 25 into 51 डिवाइडेड बाय, अभी टोटल क्वांटिटीज कितने हैं, अभी 1 से लेकर 50 तक नंबर्स है स्टूडेंट्स, तो 50 क्वांटिटीज हुए कि नहीं, नंबर्स आर फ्रॉम 1 to 50, तो टोटल नंबर्स कितने हो गए, 50 हो गए, so divided by 50. Okay, so 25 1 जा, 25 2 जा, 2 1 जा, 2 2 जा,
2 5 10.5, तो एवरेज कितना होगा 25 पॉइंट। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? क्या ये सबको समझा है? आयुष आपको समझा है? ओके, सब शीतल, ओके, तौसिफ, ओके, प्रफुल्ल, भरत, ओके, अक्षय, ओके, चलो, ओके। 15 नेचुरल नंबर है, तो 15 नेचुरल नंबर का सम कैसे ढूंढा, ये फॉर्मूला से ढूंढा, n into n plus 1 by 2। ओके, तो उसको पूरा सॉल्व नहीं किया, वैसे का वैसा रखा, क्योंकि आगे जाके वो कट होने वाला है, आगे जाके वो कट होने वाला है। तो सम कितना हुआ 25 into 51, टोटल क्वांटिटीज कितनी हुई भाई, 1 से लेकर 50 तक नंबर है, so divided by 50 and the average is 25.5। okay, now let's move ahead। yes, yes, Praful, yes, definitely middle number 25 26, yes, 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 100%। okay, but to visualize that in this class, okay, I would have, okay, faced a difficulty, you can definitely use that properly, okay, Praful? More, okay, students, okay, आप 17 एग्जांपल सॉल्व करना, सॉल्व 17 एग्जांपल। okay, the average of 7 consecutive numbers, okay, consecutive मतलब back to back, consecutive number मतलब back to back, मतलब जैसे 1 2 3 4 5 6, okay, back to back नंबर जो आते हैं इसको हम लोग consecutive, consecutive numbers मतलब back to back। उसमें से आपको लार्जेस्ट ढूंढना है, ढूंढना जरा। ओके भरत, व्हाट अबाउट अदर्स? ओके स्टूडेंट्स, देखिए, in this example, okay, average of 7 consecutive numbers is 20, okay, मतलब 7 नंबर्स है जिसका एवरेज 20, तो एवरेज मतलब बीच का नंबर 20, बीच का नंबर 20 मतलब यहाँ पर 3 नंबर होने वाला है और यहाँ पर 3 नंबर होने वाला है, और कंसेक्यूटिव मतलब मैंने आपको क्या बोला, बैक टू बैक, कंसेक्यूटिव मींस बैक टू बैक, ओके, तो 20 21 22 23, ओके, 20 के राइट हैंड साइड में 3 नंबर्स होंगे, तो लार्जेस्ट पूछा है तो लार्जेस्ट नंबर तो 23 होगा, अगर स्मॉलेस्ट होता तो 3 नंबर पीछे चला जाता, 19 18 17, और इसको स्मॉलेस्ट बोलता भाई, ये स्मॉलेस्ट है और ये लार्जेस्ट है, तो हमें लार्जेस्ट पूछा है तो इसके इसमें आंसर है 23। क्या डिफरेंस डिफिकल्ट था, एवरेज दिया हुआ था, ओके, वो क्वेश्चन समझा क्या आपको? ओके, वो क्वेश्चन आपको समझा क्या स्टूडेंट्स?
जो हम लोग ने अभी किया। मेरा आवाज आ रहा है क्या सबको? स्टूडेंट्स, डिड यू अंडरस्टैंड दैट क्वेश्चन? ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? सिर्फ अक्षय को ही समझा? मेधारी, शीतल, मंगेश, तौसिफ? अच्छा, कविता नाही समजलं? काय नाही समजलं? See, average is 20. Okay, and there are 7 numbers. तो I would say यहाँ पर 3 numbers है और यहाँ पर भी 3 numbers है ना? ओके, तो नेक्स्ट नंबर इज 21, 22, 23। तो हाईएस्ट नंबर कितना होगा? 23। और लोएस्ट नंबर पूछते तो मैं 3 नंबर्स पीछे चला जाता, 19, 18 एंड 17। आई वुड हैव सेड 17 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। ये वही कंसेप्ट है यार जो मैंने बोला था, 2, 4, 6, 8, 10। इन नंबर्स का एवरेज कौन सा है? 6 है। क्यों? क्योंकि बीच का नंबर है। तो वैसे भी 20 इन लोग के बीच का नंबर था ना। 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, टोटल 7। तो यहाँ पर 2 थे, यहाँ पर 2 थे, इसके हिसाब से तो मैं एवरेज 6 बोलता था। ओके, वन से एक बार कनेक्शन सब ढंग से देख लेता हूँ। कविता, इज दिस क्लियर नाउ? अभी हम लोग एक्चुअल एग्जांपल्स करते हैं, ओके, जो शायद एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। ओके, थोड़ा कैलकुलेशन अभी करते हैं और फिर थोड़े कंसेप्चुअल एग्जांपल्स भी करते हैं। ओके, दोनों तरफ के एग्जांपल्स करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, आप ट्राई करो एग्जांपल नंबर 23। ट्राई एग्जांपल नंबर 23। ओके, आप ट्राई करोगे, मैं खुद ट्राई करूंगा। आप एक बार पढ़ के देखो। क्या आंसर? व्हाट इज द आंसर स्टूडेंट? व्हाट इज द आंसर? सी स्टूडेंट, लेट अस सी क्या है। A library has an average of 510 visitors on Sundays। मतलब संडेज में लाइब्रेरी में 510 विजिटर्स आते हैं। ओके, एंड 240 ऑन अदर डेज। तो मतलब मंडे टू सैटरडे ओके 240 लोग आते हैं, लेकिन संडे पे 510 आते हैं। द एवरेज नंबर ऑफ विजिटर्स पर डे इन अ मंथ ऑफ 30 days, ओके, बिगिनिंग विद द संडे, इट्स ओके। तो संडे से शुरुआत हो रही है, ओके, संडे से शुरुआत हो रही है और 30 का महीना, ओके, एंड द मंथ इज ऑफ 30। ओके, तो संडेज कौन से डेट में आते हैं? तो आपको पता है कि संडेज हर 7 दिन बाद आता है। कौन सा भी डे बेसिकली हर 7 दिन बाद आता है। हम लोग जो मिलते हैं, ओके, ट्यूसडे को या फिर थर्सडे को, तो ट्यूसडे टू ट्यूसडे 7 डेज, थर्सडे टू थर्सडे 7 डेज। तो संडे अगर फर्स्ट को है तो संडे 8 को भी होगा, उसके 7 दिन बाद भी होगा, उसके 7 दिन बाद भी होगा और उसके 7 दिन बाद भी होगा। तो टोटल संडेज कितने हैं? 5 संडेज है, 5 संडेज। ओके, तो 30 में से अगर 5 संडेज है तो 25 अदर डेज है। देयर आर 25 अदर डेज। ओके, एंड यू आल्सो नो कि संडेज को विजिटर्स कितने आते हैं? 510 आते हैं। तो इनटू 51, तो कितना हो जाएगा टोटल विजिटर्स? 510। ओके, तो 2550। ओके, और 25 अदर डेज है, तो 25 इंटू अदर डेज में विजिटर्स आई गेस 210 कितने आते हैं?
अदर डेज में कितने आते हैं? 240 आते हैं। ओके, 240 आते हैं, 240। ओके, तो मैं 25 इंटू 24 करूंगा। ओके, 600 जाते तो 6000 हो जाएंगे, 600 6000 हो जाएंगे। तो टोटल अगर हम लोग ऐड करेंगे, ओके बेसिक से बता रहा हूँ, तो 8550। अभी ये तो टोटल नंबर ऑफ विजिटर्स हुए, हमको तो इनका एवरेज निकालना है। तो एवरेज क्या होता है? टोटल डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल क्वांटिटीज, मतलब क्या? एडिशन सबकी क्वांटिटीज का डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज। तो नंबर ऑफ दिन कितने हैं? टोटल डेज कितने हैं? तो 30 है, तो 30 से डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कट। ओके, 3 2 जा 6, 2 3 8 जा 24, 1 3 5 जा 50। तो आंसर है 285 स्टूडेंट्स, आंसर है 285। वेरी गुड मानाली, भरत एंड तृप्ति। ओके, क्लियर है सबको? पहले संडेज निकाले भाई, संडे 5 होते हैं, तो संडेज में कितने लोग आते हैं? 510 आते हैं। तो 5 इंटू 510 किया, 2550 होगा। तो अभी बचे हुए कितने दिन है? 25 डेज है। देन वी मल्टीप्लाई 25 बाय 240। क्यों? क्योंकि अदर डेज को, ऑन अदर डेज देयर आर 240 विजिटर्स, तो उसका टोटल आया 6000। दोनों को ऐड किया, 8550 आ गया। देन वी डिवाइडेड इट बाय 30। व्हाई? बिकॉज़ देयर आर टोटल 30 डेज, तो हर एक का एवरेज कितना हो गया? 285 हुआ। ओके, क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। मंगेश क्या लगा? अक्षय? ओके, आई होप दिस इज क्लियर। एग्जांपल नंबर 29 एग्जांपल करना। एनी आंसर? डिस्कार्डेड मींस निकाल दिया, डिस्कार्डेड मींस निकाल दिया। किसी स्टूडेंट का एवरेज ऑफ 50 नंबर्स इज 30। तो इसके दो वेज है, मैं आपको दोनों चीजें बताता हूँ। ओके, एवरेज का फॉर्मूला सबको होता है। एवरेज क्या है? सम ऑफ ऑल क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज, या फिर टोटल क्वांटिटीज। तो एवरेज कितना है? 30 है, 20 नहीं 50 है। 50 नंबर इज 30, 50 नंबरों का एवरेज 30 है। एवरेज 30, सम डिवाइडेड बाय 50। टोटल क्वांटिटी 50 थे, तो सम कितना हुआ? ये 30 इंटू 50 मल्टीप्लाई हो जाएगा,
1500, तो एडिशन क्या हुआ 1500। अभी इसमें से दो नंबर्स निकाल दिए, ओके, टू नंबर्स हैव बीन रिमूव्ड, कौन से 35 एंड 40, दो नंबर्स निकाल दिए 35 एंड 40, ओके, तो 35 एंड 40 निकाल दिए, -35 करूंगा, -40 करूंगा, तो टोटल 75 मैंने निकाल दिए, 1500 में से 75 कम हो गया, बचता है कितना 1425, ओके। अभी नंबर्स पहले कितने थे, नंबर 30 थे, there were 30 numbers, now I have removed two numbers, so now I am left with 28 numbers, now I am left with 28 numbers, ये दो numbers मैंने निकाल दिए, तो डिवाइड कितने से करूंगा, अभी 30 में से दो कम करूंगा 20, तो एवरेज कितना होगा 28 वन जा, 28 5 is 140, 50 के आसपास आता है। हमने तो जल्दी किएगा भाई, अरे हाँ हाँ हाँ, थैंक यू, मैंने ही बोला, तो मैंने उल्टा किया, यस यस यस, नंबर तो गई 30 नहीं है, थैंक यू, यस, टोटल नंबर तो 50 थे ना, अभी दो कम हुए, तो 28 से नहीं 48 से डिवाइड करूंगा, 28 से नहीं भाई 48 से डिवाइड करूंगा, डिवाइड इसमें 48, 50 थे, 50 में से अभी 48 नंबर बाकी है, ओके, तो 48 बन जाए, 48 तो 48 थ्री जा तो नहीं होगा, तो टू जा ही होगा भाई, 42 जा 96, ओके 46 बचता है, ओके 48 9 जा तक जा सकता हूँ, तो 29 पॉइंट, अभी यहाँ पर नीचे लिखा 29, ओके 4 9 जा 36, 8 9 जा 72, ओके 36 72, 432, 432 में माइनस कर दूंगा, 465 में से 432 चलेगा, 33 बचा, पॉइंट ये 330 आ गया, ओके 4 7 जा 28, 8 7 जा 56, ओके 29.6 के आसपास आएगा, 29.6 के आसपास आएगा, ओके, तो ऐसा कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहा है 29.6 के नजदीक, 29.68, ओके ये वाला आंसर है 29.6, ओके नियर बाय, बेसिकली इसमें कुछ दम नहीं था, थोड़ा कैलकुलेटिव था, ओके, कंसेप्चुअली कुछ दम नहीं था, हाँ लेकिन कैलकुलेशन था, डेसिमल्स तक जाना, वो सब करना, ओके कैलकुलेटिव था, लेकिन इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं था। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? हाँ शीतल, 50 नंबर है, उसका एवरेज 30 है, 50 नंबर है, देखो देयर आर 50 नंबर्स, तो सम ऑफ ऑल कॉम्बिनेशन 50 हो गए, एवरेज पूरा है 30, तो 30 हो गए, तो सम कितना हुआ, एडिशन कितना हुआ भाई, तो 15 into 30 1500 एडिशन हुआ, okay. अभी दो नंबर्स निकाल दिए, तो दो नंबर्स कौन से, 35 एंड 40, तो मैंने 1500 में से 35 एंड 40 को माइनस कर दिया, ओके, तो उनको माइनस करने के बाद क्या पता चलता है, द रिमेनिंग इज 1425, नाउ 50, there were 50 numbers initially, I removed 2, now I am left with 48 numbers, so I divided 1425 by 48, and the answer was 29.6, मैंने ऑप्शन देखा, okay, is this clear now, is this clear now? Okay. अरे शीतल, 50 में से दो नंबर्स कम कर दिया ना, तो 48 आया, 50 में से मैंने दो नंबर निकाल दिया ना, 35 एंड 40, इसके लिए वो 48 आया, ओके, 30 करना, एग्जांपल नंबर 3030,
ओके, मैं इसका दूसरा तरीका भी बोलने वाला था, एक मिनट, मैं इसका दूसरा तरीका भी बोलने वाला था। अभी ये थोड़ा कंसेप्चुअल है लेकिन समझ लो, ये तरीका थोड़ा कंसेप्चुअल है लेकिन समझ लो। ओके, जो दो नंबर्स निकाल दिए ना, ओके 35 एंड 40, तो मतलब टोटल फर्क कितना पड़ा भाई, 75 का फर्क पड़ा, 75 का डिफरेंस है। ओके, अभी बचे हुए नंबर्स कितने थे, 48 थे, बचे हुए नंबर्स कितने थे, 48 थे ये, तो 75 को मैं 48 में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। ओके, 75 जो कम हुआ है उतना इफेक्ट कितने नंबरों पे गिरेगा, बचे हुए 48 नंबर्स पे। ओके, तो अभी इसको डिवाइड कर सकता हूँ, 3 इंटू 25 16, 25/16 आता है, तो इसको आसानी से डिवाइड कर सकता हूँ, 16 1 जा 16.9 बचा। ओके, 90 हो गया, 16 5 जा 80, 10 बचा 100 हो गया, 16 6 जा 96, तो ये 1.56 है ना, ये 1.56। बात बन नहीं रही है, बात बन नहीं रही है। बेसिकली आई वाज टू टेल यू कि 30 में से इतना माइनस हो जाएगा, बट हमारा आंसर 29.68 है। ओके, तकरीबन, और इसको अगर मैं 30 में से माइनस करूंगा तो 28 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। ओके, विच इज नॉट द आंसर, विच इज नॉट द आंसर, बिकॉज दैट उतना फर्क तो 48 नंबर्स पे डिफरेंस होने वाला है। हम्म, ओके ठीक है, ये बेसिकली एक्चुअली ये मेथड राइट है, लेकिन अभी ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, पता नहीं चल रहा है। ओके, 75 मैंने कम कर दिया, दैट विल हैव एन इफेक्ट ओवर द अदर 48 नंबर्स, तो अदर 48 नंबर्स पे वो इफेक्ट कितने का है, तो इफेक्ट तो बेसिकली 25 और 48, 75 और 48 का आएगा, 48 नंबर्स बचे हुए हैं, तो ये 1.56 आता है, बट क्यों नहीं हो रहा है यार, क्यों नहीं हो रहा है, 1500 में से 75 चला गया। ओके ओके, वेट 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 वेट, ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं, समझ में आया समझ में आया, वही बोला मैंने, वही मेरे पास शॉर्टकट कैसे नहीं है। ओके, ये तो एक ट्रेडिशन मेथड मैंने आपको बताई थी। ओके स्टूडेंट्स, मुझे बात बताओ, आई होप आप सब लोग को, ओके यस आप लोग को एवरेज हमारा कितना था, 30 था, एवरेज हमारा 30 था, और जो नंबर्स हम लोग ने निकाले थे वो 35 और कितने थे, 40, तो एवरेज से जब बुलावे तुझे यारे आज मेरी गलियां, बसाऊं तेरे संग मैं अलग दुनिया। बड़े नंबर, ओके, एवरेज से बड़े नंबर है, तो जब मैं एवरेज से बड़े नंबर्स कम कर दूंगा, तो डेफिनेटली यू विल एग्री विद मी कि भाई एवरेज कम होने वाला है, यस और नो, ये बात सबको समझी है क्या, ये बात सबको समझी है क्या, हाँ भाई हाँ। कोई हाँ कौन लिख रहे हैं? आयुष लिख खाली अक्षय, भरत, किरण, यस सर लिख दे। आप बात समझी क्या? कौन समझी? हाँ समझ ओके क्या है? ओके, सबको समझे, वेरी गुड अक्षय, ओके ओके चलो, तो डेफिनेटली अभी देखो ये डिफरेंस कितना है, 5 का डिफरेंस है,
ये डिफरेंस 10 का है, ओके। तो 15 का डिफरेंस गिरेगा, ओके। और नंबर्स कितने 48, क्योंकि दो 50 नंबर से ना, 50 नंबर से तो दो नंबर्स कम हो गए, तो 50 डिवाइडेड बाय 14। अभी मैं इसको कर सकता हूँ 3 5 15, 3 into 16, 16 1 जा 16, अभी 0 जा पॉइंट 50 हो गया, 16 3 जा 48, 16 3 जा हाँ 48 हो गया, 2 बच गया, 16 1 जा 16, तो 0.31 में कम कर दूंगा 50 में से, 30.00 0.31 कम कर दूंगा, तो ये 69 हो गया और ये 29 हो गया, तो ऑलमोस्ट आंसर सेम ही है ना, 29.69 29.68। अरे घटी में कौन, ओके। सी द नंबर्स व्हिच आई हैव रिमूव्ड, ओके, जो नंबर्स मैंने निकाले, ओके, दोज नंबर्स आर ग्रेटर देन द एवरेज, ओके, दोज नंबर्स आर ग्रेटर देन द एवरेज, ओके। 35 एंड 40, तो 35 एंड 40 का मैंने डिफरेंस निकाला, ओके। 30 और 35 में डिफरेंस कितने, 5 का है। 30 और 45 के बीच में डिफरेंस कितने है, 10 का है, ओके। तो टोटल डिफरेंस कितना हो गया, 15 का डिफरेंस हुआ कि नहीं, ओके। तो 15 नंबर्स का फर्क पड़ने वाला है कितने नंबर्स पे, 48 नंबर्स पे, ओके। दैट 15 डिफरेंस ऑफ 15 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, क्योंकि एवरेज मतलब क्या था, उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होता है, ओके। तो 15 नंबर्स का फर्क, ओके, 15 का फर्क किसके ऊपर गिरने वाला है, 48 नंबर्स, क्योंकि इनिशियली 50 नंबर्स थे और दो नंबर्स निकल दिए, तो नाउ वी आर लेफ्ट विद 48 नंबर्स, तो 15 डिवाइडेड बाय 48 किया, 0.31 आंसर है, और माइनस किया 30 में से, माइनस क्यों किया, बिकॉज जो नंबर्स मैंने निकाले हैं वो एवरेज से ज्यादा थे। अगर एवरेज से मैं कम नंबर्स निकालता, मतलब एवरेज से मैं छोटे नंबर्स निकालता, जैसे फॉर एग्जांपल एक नंबर होता 20 और 25, तो मैं एवरेज पे ऐड करता, बट मैंने जो नंबर्स निकाल दिए, द नंबर्स व्हिच आई हैव रिमूव्ड आर ग्रेटर देन दैट ऑफ द एवरेज, hence I have subtracted those numbers from the average. Is this now clear to everyone? मनाली का अलग आता, ओके। आई होप ये सबको क्लियर होगा, ओके। चलो, सी स्टूडेंट्स, आई एम टेलिंग यू द शॉर्टकट्स, मतलब ये सो मैं आपको ये सब मेथड बता रहा हूँ ना, ओके। क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज सी all of you will be able to solve each and every question, but we have to solve that question in limited time, okay। तो उसके लिए हमारे कैलकुलेशन तो अच्छे होनी चाहिए, बट ऑन द कॉन्ट्री वी शुड आल्सो नो कि which method to apply where, okay, and how it will reduce our time, okay। To attempt the question we should definitely minimize the number of seconds or the time that we take to solve a question, okay। तो ये सब मेथड मैं आपको इसके लिए बताऊँ, I hope ये clear है। Now let's move ahead without wasting further time. अब करो एग्जांपल नंबर 30। एग्जांपल नंबर 30 करना है, ओके। 30 30 The average of 5 numbers is 27. If one number is excluded, the average becomes 25. Okay, the excluded number is. Very good, Akshay and Kavita. Very good. Keep it up. Okay. Chalo, let's see. Again, I will tell you two methods. Okay.
पहले क्या बोला है, द एवरेज ऑफ 5 numbers is 27, one number is included, the average becomes 25 हो गया। एवरेज कितना होता है, सम अपॉन टोटल क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी। ओके, तो सम कितना होगा, एवरेज है 27 और क्वांटिटीज कितने 5, तो 27 into 5, तो टोटल कितना है 135। अभी एक नंबर कम कर दिया, तो 5 नंबर थे शुरुआत में, अभी 4 नंबर हो गए और एवरेज 25 हुआ है, तो 27 का एवरेज कितना हुआ 25, तो सम कितना हुआ अभी 100। तो इन शॉर्ट जो मैंने नंबर निकाला है इन दोनों का डिफरेंस 35 आता है, हेंस मैंने 35 नंबर निकाल लिया। क्लियर है ये मेथड, बेसिक मेथड है ये, तो शायद सब लोगों ने यूज किया होगा। क्लियर है, एवरेज था 27, ओके, सो 27 इनटू टोटल क्वांटिटी, ओके, वो हो गया हमारा एडिशन सम। ओके, फिर एक नंबर कम कर दिया तो 5 से 4 हो गया और द न्यू एवरेज इज 25, तो 25 into 400, फिर दोनों का जो डिफरेंस है वही नंबर मैंने निकाल दिया 35। क्लियर है मेधाली, शीतल, क्लियर है, भरत, अक्षय, ओके, स्नेहा, ओके स्नेहा, गुड गुड। अभी ये हो गया ट्रेडिशनल मेथड, अभी ये दिखने के लिए छोटा लगेगा क्योंकि नंबर्स काफी फ्रेंडली है, ओके, लेकिन एक शॉर्टकट भी बताता हूँ। ओके, 5 नंबर का एवरेज कितना है 27, एक नंबर कम कर दिया है 4, तो उनका एवरेज कितना है 25। ओके, तो कितने से कम हुआ, 2 से कम हुआ है। ओके, और ये कितने से नंबर एक कम कर दिया, द एवरेज विल बी, जो नंबर निकाल दिए वो इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन होगा प्लस इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन, मतलब -1 into 25 प्लस ये 5 into -1, -25 -10। ओके, ये रट लेने का, ये मेथड रटने का है। तो -35 तो कोई नंबर नहीं होता, तो 35 नंबर निकाल दिया। ओके, ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाली मेथड है ना, ओके, ये आपके एग्जाम में ज्यादा काम नहीं आएगी, ये जो राइट हैंड साइड वाली मेथड है ना, यही आपके काम में आने वाली है। ये मेथड आपको ज्यादा काम में नहीं आएगी, ये राइट हैंड साइड वाली मेथड ही आपको काम में आएगी क्योंकि नंबर ज्यादा हो जाएंगे। ओके, तो नंबर ज्यादा हो जाएंगे, ये लिख लेना। ओके, ये माइनस क्यों किया, क्योंकि एवरेज कम हो गया 25 का, 27 का 25, -1 क्यों किया, क्योंकि एक नंबर निकाल दिया। क्योंकि ये एरोज याद रखना, रिमेंबर दिस एरोज, कौन सा नंबर कहाँ से मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि आपको ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर। ओके, दिस इज द कंसेप्ट। ओके, ये कैसे आया, क्यों आया, ओके, इसमें ज्यादा घुसो मत, ये कंसेप्ट है, ये इसको याद करो। ओके, कंसिडर दिस एज अ फॉर्मूला। सो शुड आई मूव अहेड स्टूडेंट्स, क्लियर है सबको? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो लेट्स मूव।
सॉल्व 31 31